Good morning, students. Warm welcome again in online classes. क्लास 9 केमिस्ट्री में हमारी बात पिछली वीडियो में मेटल्स की प्रॉपर्टी तक हुई थी. आज we will study about the non-metals and its properties and what are the exceptions in the case of non-metals and what are the metalloids. Means complete classification of elements we will study today. हम पढ़ने वाले हैं. Now what is non-metal? Let's see. A non-metal is an element that is neither malleable nor ductile and does not conduct electricity. Non-metal क्या होता है? ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो न तो मैलिएबल होते हैं. हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मैलिएबल, जिनको हम हथौड़े से पीटकर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड मैलिएबल. एंड डक्टाइल, डक्टाइल पतले तार हम नहीं बना सकते नॉन मेटल्स के. और नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. एग्जाम्पल लेंगे नॉन मेटल्स के. कार्बन, देयर आर टोटल more than 120 elements. Out of these, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, helium, neon, argon, diamond and graphite. Basically diamond and graphite are the two crystalline form of carbon, etc. Means यदि हम non metals के example की बात करें तो these are the examples of non-metals. As you know that we classify the element into three categories: metal, non-metals and metalloids. So this one is the definition of non-metals and the examples. Now let's see what are the properties. Now let's see properties of non-metals. The first one is non-metals are not malleable. नॉन मेटल को हम पतली चादर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दे आर ब्रिटल. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. नाउ ब्रिटलनेस, it is the unique property of non-metals in which a non-metal can be converted into thin pieces. non-metal क्या होती है? ये non-metal का ऐसा गुण है जिसके अंदर non-metal को हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कार्बन, कार्बन को यदि हम क्रश कर दें तो वी कैन चेंज द कार्बन इनटू small pieces. So this is the unique property of non-metal. Brittleness is the unique property of non-metals. Non-metals are not malleable, as well as second property, non-metals are not ductile. We cannot convert the non-metals into thin wires. Is that clear? Now third one is non-metals are the bad conductor of heat and electricity. Non-metals are the bad conductor of heat and electricity. There are some exceptional case in the case of heat as well as in the case of electricity. Diamond is the crystalline form of carbon, as we have earlier discussed. The diamond is the good conductor of heat, whereas graphite is the good conductor of electricity. Diamond is the good conductor of heat, whereas graphite is the good conductor of electricity. Now next property is non-metals are not lustrous. यानी नॉन मेटल के अंदर कोई विशेष चमक नहीं होती है. दे आर डल इन अपीयरेंस
ये देखने पर भद्दी प्रतीत होती हैं। और यहाँ भी एक एक्सेप्शन केस है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन को यदि हम देखें या ग्रेफाइट को भी यदि हम देखें तो इनका जो अपीयरेंस होता है वो थोड़ा चमकदार होता है। ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर देखिए आप, उसके अंदर एक विशेष चमक आपको नजर आएगी, ऐसे ही आयोडीन। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट डायमंड। यहां पर भी एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड। एंड we know one wonderful thing about the diamond is that diamond is the hardest known substances in nature। डायमंड जो होता है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, वो लो होती है। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड इन द फॉर्म ऑफ गैस। नॉन मेटल्स को यदि हम देखें तो नॉन मेटल्स मैटर की ये 3 स्टेट होती हैं, मेन 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इन्हीं स्टेट्स ऑफ में पाई जाती हैं। जैसे यदि बात करें कार्बन एंड सल्फर, कार्बन एंड सल्फर, दीज आर द सॉलिड नॉन मेटल्स, वेयर एज ब्रोमीन, ब्रोमीन इज द नॉन मेटल which is present in the liquid state, whereas oxygen, hydrogen and nitrogen are the non-metals which are present in gaseous form। ये कहाँ मिलती हैं, ये गैसेस के रूप में मिलती हैं। Now next property is non-metals have low melting and boiling point। जो non-metals के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, लो होते हैं। जबकि हमने मेटल के केस में क्या पढ़ा था कि मेटल में के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और यहां पर भी क्या है, एक एक्सेप्शन आप याद रखेंगे, एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विच इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी कैसी होती है, लो होती है। और यहां भी एक एक्सेप्शन है जी, क्या है जी, आयोडीन, विच हैव द हाई डेंसिटी। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स अकर्स इन डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो डिफरेंट कलर्स में पाई जाती हैं, जबकि मेटल के केस में हमने पढ़ा था कि जो अधिकतर मेटल्स होती हैं वो कैसी होती है, ग्रे और येलो कलर की होती है, उनका कलर निश्चित होता है। जबकि नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स इन नेचर। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, आपने देखा होगा यदि सल्फर, तो सल्फर कैसा होता है, येलो कलर का होता है नेचर के अंदर। एंड फॉस्फोरस, यदि बात करें फॉस्फोरस की, तो इट इज प्रेजेंट रेड और व्हाइट फॉस्फोरस। आपने देखा होगा इसका यूज कहां करते हैं, माचिस मैच बॉक्स की जो साइड होती है, रबिंग साइड होती है, उसके ऊपर लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। वेयर एज ग्रेफाइट, अगर हम बात करें ग्रेफाइट को यदि आप देखें तो कैसा अपीयरेंस में होता है, दैट इज ब्लैक। और भी मैं आपको बताता हूं
क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर की गैस है, ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर की गैस है, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर द गैस विच आर कलरलेस एज वेल एज ऑर्डरलेस। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज का भी यहां हमने स्टडी किया, यानी ये एलिमेंट का जो सेकंड पार्ट है वो भी, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो भी कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेटलॉइड्स। व्हाट आर द मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ठीक है जी, अब हम उनको स्टडी करते हैं। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स या आर दो सब्सटेंस which have the property of both metal as well as non metal, यानी ऐसे पदार्थ जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। बेसिकली मेटल as well as non metals, they have the properties of both metals as well as non metals are called metalloids, or the substance which have the properties of metals as well as non metals are called metalloids. For example यदि हम देखें metalloids के, तो there are 7 elements in the periodic table which are metalloids. स्टूडेंट्स, हम इनको भी याद कर लेंगे। ओनली दीज आर द 7 elements which act as both metal as well as non-metals. Due to this, they are also known as semi-metals. इनको हम semi-metals के नाम से भी जानते हैं। तो what are these? First one is polonium, poly. Second is astatine, poly anti. Tellurium, tellurium. Antimony, germanium. बोरॉन। एंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7th इज सिलिकॉन। These are the 7 metalloids. How we can learn these 7 metalloids easily? हम लंबे समय तक कैसे इनको मेमोराइज कर सकते हैं? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे तो फिर इनको ये अगर हम इनको रिपीट नहीं करेंगे तो इन दिमाग से निकल जाते हैं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। सो आई टेल यू ए निमोनिक बाय विच यू कैन लर्न these metalloids easily. Mnemonic is poly, anti, terry, sub-G, बासी। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको इंग्लिश में ही याद करें। हिंदी में नहीं समझ आता, इंग्लिश में नहीं आता, तो क्या बोला है मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। पॉली, आंटी, तेरी, सब्जी, बासी। इस लाइन के अंदर ये 7 के 7 मेटलॉइड्स छुपे हुए हैं। पॉली से मतलब फर्स्ट पोलोनियम, आंटी, सेकेंड स्टेटाइन, थर्ड टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, सब-G। देखो यहाँ पे सब-G लिखा है तो उसका सिंबल एंटीमनी का क्या होता है, यहाँ याद रखना पड़ेगा, Sb होता है। Sb दैट इज 4, G दैट इज 5, दैट इज जर्मेनियम। बासी, बा में बोरॉन 6 और
सी, ब सी, यहाँ पे दो एलिमेंट है, ब बोरॉन, सी सिलिकॉन। फिर दोबारा बता देता हूं, पॉली पोलोनियम, एस्टेराइन, टेल्यूरियम, एंटीमनी सिंबल होता है किसका, एंटीमनी का Sb, इसलिए लिखा हमने सब, इनको मिला करके सब, G जर्मेनियम एंड बोरॉन और सिलिकॉन। सो दीज आर द मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स विच आर इन पीरियोडिक टेबल। दीज आर नंबर इन 7। सो स्टूडेंट्स, आज वीडियो के अंदर केवल इतना ही। कल आपको इससे रिलेटेड एक वर्कशीट या असाइनमेंट या जिसको आप अपनी नॉलेज के आधार पर जो अब तक आपको पढ़ाया गया है उसके आधार पर हाउ यू कैन सॉल्व दिस असाइनमेंट और वर्कशीट और यू कैन से सेल्फ असेसमेंट मिलेगा, उसको आपने सॉल्व करना है और उसका व्हाट्सएप आप मेरे को भेजेंगे तो मैं उनका आंसर को चेक करके आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, जो भी भेजेगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।